My name is Ram sir, Master of Science in Biology, Diploma in Medical Lab Technology, जिसको आप कहते हो पैथोलॉजी। बेटा कोरोना में मेडिकल फील्ड का कितना यूज है आपको पता है? ओके, राइट। बेसिकली आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड, आई टीच बायोलॉजी एंड आई हैव डन बैचलर ऑफ एजुकेशन। मेरे डिग्री के सब फुल फॉर्म बता दिए मैंने। मास्टर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी, diploma in medical lab technology, bachelor of education. Okay, right? I'm teaching in a very prestigious college of Mumbai. Okay, right? Okay, आज हम start करेंगे। देखो बेटा लिखा है बोर्ड पे classification of plant. This is chapter number 6 from your textbook. The textbook which is prescribed by Maharashtra board. ओके, एसएससी का जो टेक्स्ट बुक सिलेबस होता है उसका है क्लासिफिकेशन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लास, यहाँ पे क्लास नहीं, हाई क्लास, लो क्लास नहीं, वो नहीं। क्लास का मतलब क्या होता है? ग्रुप। ग्रुप कैसे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में रखते हैं? ओके, सी यू नो दैट फ्रॉम द बिगिनिंग there were only two groups of organisms. Only two groups of organisms. One is animal, second is plant. Okay, right? उसके बाद डिस्कवर क्या हुआ? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, so basically when we talk about organisms we say there are three groups: microorganisms, plants and animals. Okay, right? I am going to deal with only plants today. This chapter is related to plants. Okay, I hope you understand this beta. Okay, how will I come to know that you understand? You all are alert. Okay, mera beta signature move kya hai? If you understand, it is thumbs up. If you do not understand, thumb down. I hope you are getting it. Okay, right? Can I see your thumbs up? Can I see your thumbs up? Yes, very good, very good. Okay, I'm starting with classification of plants. Okay, let's see the first slide in this. Okay, let's see the first slide in this. Okay, let me change the slide. Just a minute. Yes. Okay, beta पहचानो ये कौन है? Definitely it's not me. It's not me. Okay, उसमें लिखा है बेटा 1980 चला गया। ओके, कब आया था दुनिया में? 1920। नाम क्या है इसका? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। ओके, इसने क्या किया था बेटा? ही गेव क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, 5 kingdom classification. I think it was there in your 8th standard. Some few kingdoms you have studied. Okay, right? Okay, can you see the diagram there? Something like a tree diagram. Yes or no? You can see something like tree diagram. Okay, in that you see the bottom. You see the bottom. Okay, what is written there? Monera. What is written there? Monera. This is the group of bacteria. This is the group of bacteria. Okay, right? Next group you can see Protista. Okay, can you see the Protista in between? Okay, okay, there are some 5 balloons like things. The balloon at the bottom क्या लिखा है बेटा? Monera. 3 balloons at the top क्या लिखा है? Plants, animals and fungi. Okay, some people call it as fungi also. चलेगा, fungi or fungi. Okay, both are correct. Both are correct. Okay, in between you can see Protista. Protista. Okay, सब लोग repeat करेंगे बेटा। Monera. Monera. See the spelling MONERA. Second group बेटा यहां लिखा है देखो Protista. क्या लिखा है? Protista. Next group देखो बेटा, ऊपर के 3 ग्रुप Fungi, Plantae and Animalia. Okay, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, we belong to which group? We belong to which group? Okay, इशारे से बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा के 5वां?
I can see your faces, I can see your hands. कौन से ग्रुप में हम लोग आते हैं बेटा? We belong to kingdom Animalia, पांचवा वाला जो है animals, right? Okay, we are higher animals, सबसे ऊपर है हम, right? So 5 kingdom का knowledge, okay, if you want you can take it down. Robert Whittaker in 1969 gave knowledge about 5 kingdoms, okay, right? Monera, Protista, fungi, plantae and Animalia. That means he classified all organisms, whole of the world, living world is classified into these 5 kingdoms. Okay, one group is missing in this. One group is missing in this. कौन सा बताओ जरा? सोचो सोचो सोचो. Now this is pandemic time. कोरोना चल रहा है. कोरोना कौन देता है बेटा? It's a viral disease. वायरस है कहीं पे? वायरस दिख रहा है आपको? नहीं. 5 kingdom classification. Viruses are missing. The reason I will tell you later on. Okay. R.H. Whittaker, 1969, classified whole of the living world into 5 kingdoms. इसके लिए इसका famous नाम क्या हो गया? 5 kingdom classification. क्या नाम हो गया बेटा? 5 kingdom classification. ठीक है? Okay. This slide is clear. एक बार repeat करेंगे. Monera, Protista, fungi, Plantae and Animalia. Okay, can we go ahead? Okay, thumbs up or thumbs down? Let me see. Thumbs up or thumbs down? Yes, very good. Very good. I'm happy. Good students. Good students. See, living organisms classified into 2 subgroups. Beta, देखो screen पे देखो. Prokaryotic. Do you have knowledge about this? What is prokaryote? Word को तोड़ो. Word को तोड़ो. Prokaryotic. What is karyotic? Nucleus. What is pro? Primitive. Okay, it's a Greek word, karyon. Karyon means nucleus. Okay, the organisms in which nucleus is primitive. Okay, or we can say the nucleus is not well organized. ऐसे organisms जिनका nucleus proper नहीं है. Okay, right? Pro, primitive, karyotic, karyon, nucleus. ठीक है? Right? Right? Second, eukaryotic. Eu, बेटा EU, karyotic. Break किया मैंने. EU, karyotic. U means true. True. True, true, actual nucleus, organisms with proper nucleus. Okay, right? So 2 groups of organisms, prokaryotic, eukaryotic. Yani primitive type of nucleus in the cell. These organisms are called prokaryotes, and there is proper nucleus in the organism called eukaryotes. ठीक है? इतना समझ में आ गया? Okay, right? Prokaryote सिर्फ एक ही ग्रुप है, सिर्फ एक ही ग्रुप, Kingdom Monera. Kingdom Monera includes only prokaryote. बाकी किसी में prokaryotes नहीं आते. देखो आज भी अगर तुम साइंटिस्ट बनते हो, प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कवर करोगे, कहां रखोगे बेटा? कौन सा ग्रुप में? It should be kept in Kingdom Monera. It should be kept in Kingdom Monera because that is the special created group for bacteria, for prokaryotes. ठीक है? Right? Viruses यहाँ नहीं है. Viruses का अलग group है, वो बताऊंगा. Okay, I'll tell you that viruses are not there in this group. They are separate group. Okay? चलो eukaryotes देखो बेटा. Now there are 2 possibilities. Whether the organism is made up of 1 cell or made up of many cells. Organism made up of single cell or made up of multiple cells. तो क्या बोलोगे? Yeah, see, every word of biology has a meaning. Just break it. Just break it. Unicellular. What is uni? Uni means 1. Uni means what? 1. Cellular. Cells. Organism made up of 1 single cell. Unicellular.
ओके, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। हमारी बॉडी में कितने सेल्स हैं? बहुत सारे, बहुत सारे। सो वी आर मल्टी सेल्यूलर। ओके, राइट। अमीबा, अमीबा one cell, paramecium one cell, so they are unicellular. We are multicellular. So organism with one cell unicellular, organism with many cells multicellular. ठीक है? अच्छा, यूनिसेल्युलर कहाँ रखे हैं बेटा करने, किस ग्रुप में रखे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा, the organisms are unicellular and they are eukaryotic. They are eukaryotic. Okay, but मल्टीसेल्युलर को वापस दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। टेबल देखो बेटा, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। व्हाट इज दैट? सेल वॉल इज द बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल को शेप देता है, उसकी बाहर की बाउंड्री को वॉल कहते हैं। ओके, सो सेल विथ वॉल, सेल विदाउट वॉल। मल्टी सेल्युलर दो टाइप्स, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल। विदाउट सेल वॉल में देखो क्या है? एनिमेलिया। वी बिलोंग टू दिस ग्रुप। हमारे सेल्स में वॉल नहीं है, मेम्ब्रेन है। ये सब एक स्टैंडर्ड का नॉलेज है जो आप पढ़ चुके हो। विथ सेल वॉल में अगेन दो देखो, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक? सेल्फ फीडर्स, अपना फूड खुद बनाने वाले। अब तुम लोग बोलोगे हम लोग भी अपना फूड खुद बनाते हैं, घर में मम्मी किचन में फूड। बेटा वो बनाते नहीं है, उसको सिर्फ टेस्टी करते हैं, कुक करते हैं। फूड बनाने का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, बॉडी के अंदर खुद तैयार करना, दैट इज फोटोसिंथेसिस। एंड प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ओके, फंगस इज हेटेरोट्रॉफ, डिपेंड अपॉन समवन एल्स फॉर फूड। Animals are also heterotrophs. We are also dependent upon plants for food, animals for food. Okay, so this classification gives you a rough idea that R.H. Whitaker classified organisms into 5 groups: Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Okay, अब देखो, Monera is prokaryotic, Protista eukaryote, unicellular, multicellular, Animalia and fungus and plantae. but तीनों में डिफरेंस क्या? फंगस इज हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक इज प्लांट, एंड वी आर एनिमल्स। हम अपने आप को पता क्या कहते हैं? होलोजोइक। ह्यूमंस आर होलोजोइक। होलोजोइक मींस इंजेशन ऑफ फूड, इंजेशन ऑफ फूड, होलोजोइक। ओके, HOLOZOIC। ओके, जो लिख रहे हैं उनके लिए स्पेलिंग बोला मैंने, HOLOZOIC। दिस टेबल इज क्लियर टू यू? Are you taking it down? This table is not clear to you? Raheja, Manisha. Correct. Very good. I can see your thumbs up. Okay, आप symbol भी डाल सकते हो बेटा। हाँ, ठीक है। So, if you want, you can take it down. Prokaryotes, eukaryotes. Prokaryotes is Monera. Eukaryotes, unicellular, multicellular. Unicellular में Protista, multicellular में Plantae, fungus and animal. ठीक है, चल नेक्स्ट। इसमें से आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स टुडे। चलो, किंगडम प्लांटे, हेडिंग, मेन हेडिंग किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे। ओके, देखो प्लांट्स कैसे होते हैं, अभी मैंने बताया, दे आर फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक होगा तो क्या नाम दोगे? ऑटोट्रॉफिक। ओके, मीनिंग क्या है? देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल। दैट मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ यूकैरियोटिक सेल। बेटा वापस बोलो, यूकैरियोटिक का मतलब, यू मीन्स ट्रू, कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस। दैट मीन्स द न्यूक्लियस इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, प्रॉपर न्यूक्लियस। प्रॉपर न्यूक्लियस में क्या होता है? बाहर एक कवर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं, यानी एक प्रॉपर टाइप का न्यूक्लियस इज यूकैरियोट। ठीक है, राइट। सेकंड कैरेक्टर देखो बेटा, प्लांट्स आर ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल। प्लांट के सेल में वॉल होता है, प्लांट के सेल में वॉल होता है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आता है मेम्ब्रेन।
पहला वॉल फिर मेम्ब्रेन, सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन. Okay, because they are plants, so cell wall is present. Right. Next is they perform photosynthesis with the help of chlorophyll. What is chlorophyll? The green color pigment. Why plants are green? Because they contain chlorophyll pigment. Okay, right, right. काश हमारी बॉडी में भी क्लोरोफिल होता. हम क्या करते? हम क्या करते? फोटोसिंथेसिस करते, बाहर धूप में खड़े रहते, अपना फूड खुद बनाते. राइट, हमको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं थी, बट हम वो कर सकते हैं. वी कैन नॉट डू दैट. वी आर नॉन फोटोसिंथेटिक. वी डिपेंड अपॉन समवन एल्स फॉर फूड. बट प्लांट्स के पास क्लोरोफिल पिगमेंट है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते. ओके, राइट. नेक्स्ट, they are the main source of food for all other living organisms. But directly or indirectly, everyone is dependent on plants. Lion, tiger, आप बोलेगे तो एनिमल पे डिपेंड है. ठीक है, करेक्ट. बट वो खाता किसको है? किसको खाता है? हर्बीवरस एनिमल को. और हर्बीवरस एनिमल्स को खाता है? ग्रासेस को, प्लांट्स को. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली plants are producers, the main source of food for all the living organisms. Okay, अगर plants ना होते तो कोई भी living organism नहीं होता, because they are the main organisms which take solar energy, convert it to chemical energy, जिसको हम कहते हैं photosynthesis. Okay, so directly or indirectly every living organism is getting food from the plant. So we say they are the main source of food. Right? आगे. Okay, previous one. Again, I'll show you the previous one, बेटा. फिर से देखो, kingdom Plantae. एक बार पढ़ लो ये पूरा slide. They are autotrophic. They are eukaryotic. Cell wall is present. They can do photosynthesis with the help of chlorophyll pigment, and they are the main source of food for all the living organisms. Okay, can I see your thumbs up? Yes, very good, very good. Next. Okay, classification of Plantae. बेटा हम बोलते हैं plants, लेकिन जब लिखते हैं बायोलॉजी में तो लिखते हैं Plantae. स्पेलिंग देखो बेटा, Plantae. Plantae, kingdom Plantae. Okay, right. दो ग्रुप्स लिख रहे हैं, पढ़ो जरा, स्पेलिंग देखो. Cryptogams, cryptogams. Right. If you break this word, I'll tell you the meaning. Crypto, gamos. Two Greek words, cryptos and gamos. What is cryptos? Cryptos का मतलब hidden, छुपा हुआ. गैमोस का मतलब है सेक्स ऑर्गन्स. इन दीज प्लांट्स द सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन इनसाइड. इनके गैमेट्स एक्सपोज नहीं होते हैं, इनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन रहते हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर छुपे हुए हैं. ओके, क्रिप्टोगैमोस, हिडन गैमेट्स. Phanerogams, phanerogamos. Phaneros means exposed. The gametes are exposed. The sex organs are visible. The sex organs are visible. Okay. Main difference क्या है? Cryptos is hidden. Phaneros is exposed, visible. Gamos means organs, sex organs. ठीक है? Right. So plants are classified into two sub kingdoms. बेटा हम इनको कहते हैं सब किंगडम. किंगडम के नीचे क्या आता है? सब किंगडम. ओके, राइट. अब इसमें आगे देखो, आगे क्लासिफिकेशन कैसा जा रहा है. राइट, क्रिप्टोगैम्स में 3 टाइप्स: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ओके, थैलोफाइटा, रिपीट करो बेटा, थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, स्पेलिंग देखो. थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. ओके, सबकी मीनिंग बताऊंगा बेटा, सबकी मीनिंग बताऊंगा. थैलोफाइटा, थैलो ब्रेक करो बेटा, फाइटा एंड थैलस. व्हाट इज फाइटा? फाइटा इज प्लांट बॉडी. थैलस
जिसमें प्लांट बॉडी इज थैलस। ओके राइट, अब ये थैलस क्या होता है ये आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। थैलस क्या होता है, प्लांट की बॉडी को थैलस क्यों कहते हैं, क्यों इस प्लांट को थैलोफाइटा कहते हैं, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, सेकंड ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा याद रखो, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, बॉडी इज एम्फीबियस। एम्फीबियस का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एनिमल किंगडम का एम्फीबियन कौन है? Can you live inside the water? Can you live inside the water? No. Frog can live inside the water. Yes or no? Right? लेकिन वो जमीन पे भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है। Do you understand? रिप्रोडक्शन के लिए कहां जाता है वो? पानी के अंदर जाता है। पता है ना, रेनी सीजन में उनका रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सो एम्फीबियंस यानी which can live inside the water and on the land. ओके वो तो एनिमल किंगडम का हो गया, फ्रॉग। यहां पे ब्रायोफाइटा, याद रखो ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, दे ग्रो ऑन लैंड बट मॉइस्ट कंडीशन, उनको भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। ठीक है, याद रहेगा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइट्स। ठीक है, थर्ड टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा बेटा इसको वर्ड को ब्रेक करेंगे ना, टेरिडो, दिस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेरॉन। टेरॉन, P-T-E-R-O-N, टेरॉन का मतलब होता है फेदर, फेदर्स। ओके, क्यों ऐसा कहते हैं? बिकॉज इनकी जो लीव्स है ना वो बहुत बड़े होते हैं, लुक्स लाइक फेदर। इन दीज प्लांट्स द लीव्स आर वेरी बिग, दे लुक लाइक फेदर्स ऑफ अ बर्ड, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड टेरिडोफाइटा, फेदर लाइक लीव्स। ठीक है, राइट, रिपीट करो बेटा, कौन से 3 ग्रुप्स? क्रिप्टोगैम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ओके राइट, सबके एग्जांपल बताऊंगा, सबके एग्जांपल बताऊंगा, थोड़ा अलर्ट रहो बेटा, थोड़ा अलर्ट रहो। चलो फेनरोगैम्स क्या है आगे देखो। फेनरोगैम्स में 2 स्पेलिंग देखो बेटा, स्पेलिंग देखो, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, राइट? मीनिंग बताऊं? जिम्नो, ब्रेक दिस वर्ड, जिम्नोस्पर्मा, स्पर्मा, जिम्नोस्पर्मा। जिम्नो का मतलब लिखो नेकेड, नेकेड, एक्सपोज्ड। स्पर्मा का मतलब सीड्स, स्पर्मा का मतलब सीड्स। एंजियोस्पर्मा, एंजियोस्पर्मा, व्हाट इज एंजियो? एंजियो का मतलब लिखो एनक्लोज्ड। ओके, एंजियोस का मतलब लिखो एनक्लोज्ड स्पर्मा यानी सीड्स। यानी 2 टाइप के प्लांट्स, दोनों में सीड्स होते हैं, एक में सीड्स नेकेड हैं, दूसरे में सीड छुपे हुए हैं। बेटा आप कौन सा फ्रूट खाते हो? एप्पल, ऑरेंज, मौसम्बी, ओके राइट, इनके अंदर सीड्स होते हैं ना, पपया, वाटरमेलन, तो ये सब एंजियोस्पर्म्स है। व्हाई एंजियोस्पर्म्स? बिकॉज फ्रूट इज फॉर्म, फ्रूट के अंदर सीड्स हैं, सो दे आर एंजियोस्पर्म्स। विदाउट फ्रूट अगर सीड होता है तो जिम्नोस्पर्म। ऐसे कौन से प्लांट्स हैं वो आपको आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा। ठीक है, so 2 types of seed bearing plants, one is gymnosperm, second is angiosperm. ठीक है, I think examples are also there in this. Okay, angiosperms again 2 types. एंजियोस्पर्म्स को हम कॉमनली कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स। और फ्लावरिंग प्लांट्स में डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ओके, व्हाट इज डाई? DI, डबल, डाई मींस 2, डबल। कॉटिलीडॉन्स, व्हाट इज कॉटिलीडॉन? बेटा सीड के अंदर क्या होता है? हैव यू सीन द सीड? बेटा मैंगो सीजन चल रहा है, मैंगो का एक सीड ले लो, उस सीड को खोल के देखो अंदर क्या दिखेगा। यू कैन सी अ स्मॉल प्लांट, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो। छोटा सा बेबी प्लांट का, छोटा सा बेबी प्लांट का कहां होता है? सीड के अंदर होता है। अगर उसमें 2 कॉटिलीडॉन्स है, अगर उसमें 2 कॉटिलीडॉन्स है तो डाइकॉट, अगर उसमें 1 कॉटिलीडॉन है तो मोनोकॉट। मोनो इज 1, डाई इज 2। ओके, सो सीड के अंदर डबल कॉटिलीडॉन, डाइकॉट प्लांट, सीड के अंदर सिंगल कॉटिलीडॉन, मोनोकॉट। ठीक है, ओके राइट। फिर से देखो बेटा, किंगडम प्लांटे, 2 सब किंगडम,
Cryptogams, phanerogams. Cryptogams, the sex organs are hidden. Phanerogams, sex organs are exposed. Right? Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. और इस तरफ क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. और एंजियोस्पर्म्स में दो, डाइकॉट, मोनोकॉट. यानी in all 5 groups of plants we'll study. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. ठीक है? Right? Quickly repeat करो. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm and Angiosperm. लेकिन दो कैटेगरीज में देखोगे तो क्रिप्टो एंड फेनेरो, और सबको साथ में मिला के कहते हैं प्लांट्स. ठीक है? उनके जनरल कैरेक्टर्स आपने देख लिए. प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, plants are with cell wall, plants are with chlorophyll, plants can do the photosynthesis, they are called autotrophic. ठीक है? ओके, राइट. मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके, चलो आगे देखो बेटा. सी द नेक्स्ट. On what basis the classification is done? देखो स्कूल में जब आप जाते हो, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ये सब क्या है? These are classification. Okay, right? Classification. One group of student छोटे से हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में, थोड़े बड़े हो गए सेकंड स्टैंडर्ड, और बड़े हो गए थर्ड स्टैंडर्ड. तो क्लासिफिकेशन है ना बेटा, वो एज के हिसाब से, मेंटल एज के हिसाब से. यहां पे क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं प्लांट्स को? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्राइटेरिया तो होगा ना. ओके, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन इज presence or absence of organ. Okay, I can give you example. See, seed is an organ. Seed क्या है बेटा? एक organ है. Plant का एक organ है ना seed. Root क्या है? Plant का organ है. Stem क्या है? Plant का organ है. So organ whether it is present or absent. Okay, I can give you example. Cryptogams without seeds. Phanerogams with seeds. तो ये classification हो गया ना? Cryptogams without seeds, phanerogam with seeds. So first criteria for classification, whether that organ is present or absent. ठीक है? Right? Right? Second classification का criteria, presence or absence of conducting tissue. Conducting tissue क्या होता है? क्या होता है conducting tissue? Conduction means what? Transport. Transport. ओके, जैसे हमारी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड में अंदर हार्ट होती है ना बेटा, हार्ट में ब्लड पंप करता है ना, यस और नो, एंड देन ब्लड इज गोइंग टू ऑल द आर्टरीज एंड वेन्स. पता है? पता है? यस और नो. इन द सेम वे इन द प्लांट्स देयर इज कंडक्टिंग टिश्यू. प्लांट के रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, वो लीफ के पास जाएगा, लीफ फोटोसिंथेसिस करेगा, वो फूड स्टेम के पास आएगा. तो ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? कौन करेगा? कंडक्टिंग टिश्यू. ओके, सो प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दिस आल्सो, वेदर टिश्यू फॉर कंडक्शन इज प्रेजेंट और एब्सेंट. ओके, राइट. उस टिश्यू को बेटा हम कहते हैं वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू. वो क्या काम करेगा? लिखा है बेटा, transport of water and food. Transport of water and food. Okay, so whether it is present or it is absent, transport of water and food. ठीक है? Next is on the basis of seeds present, seeds absent, flowers present, flower absent, leaf present, leaf absent. Okay, organs present, absent. Next, whether seed is inside the fruit और एक्सपोज, डायरेक्टली लीफ के ऊपर सीड दिखेगा तो जिम्नोस्पर्म, फ्रूट के अंदर सीड दिखेगा एंजियोस्पर्म. ऑन व्हाट बेसिस दे हैव क्लासिफाइड? ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट ओनली, द सीड्स इनक्लोज्ड और नॉट इनक्लोज्ड द फ्रूट. बेटा जो भी प्लांट में आप फ्रूट देखोगे, याद रखना वो एंजियोस्पर्म है. जिसमें आपको फ्रूट नहीं दिखता, सिर्फ सीड्स दिखता है, वो जिम्नोस्पर्म. जिसमें सीड्स नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता, वो क्रिप्टोगैम्स है.
मे बी थैलोफाइटा, मे बी ब्रायोफाइटा, मे बी टेरिडोफाइटा, ठीक है, राइट। सो प्रेजेंस ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट और विदाउट फ्रूट, विदाउट फ्रूट। आगे, हाउ मेनी कॉटिलेडॉन्स इन वन सीड? अभी मैंने क्या बताया, एक मैंगो सीड को खोलोगे 2 कॉटिलॉन मिलेंगे, एक मेज सीड को तोड़ के देखो, मक्के का एक दाना से एक ही कॉटिलेडॉन होता है, उसमें 2 नहीं होते, एक होता है, वो मोनोकॉट है। सो प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स, सीड के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर कितने कॉटिलेडॉन्स प्रेजेंट है, वेदर 1 और 2, ठीक है। एक बार क्विकली क्राइटेरिया देख लो, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, बॉडी कैसी है उसकी, उसमें रूट है क्या, स्टेम है क्या, लीफ है या नहीं है, ये एक क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, वेदर कंडक्टिंग टिश्यू इज प्रेजेंट और इट इज एब्सेंट, ओके, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। थर्ड, वेदर सीड्स आर प्रेजेंट और दे आर नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट, whether seed is inside a fruit or without a fruit, right? Last is how many cotyledons present in the seed. अगर seed है तो कितने cotyledon है उसके अंदर, ठीक है, ओके। ये बेसिस है क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन। बेटा हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, ये प्लांट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया। चलो आगे, हाँ बेटा साइंटिस्ट का नाम लिखा है, साइंटिस्ट का नाम लिखा है, पढ़ो जरा, रीड इट। साइंटिस्ट का नाम है ईचलर, ईचलर, ये बॉटनिस्ट है। व्हाट इज बॉटनी? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ओके। दिस साइंटिस्ट स्टडीड प्लांट्स and classified plant kingdom into 2 groups, cryptogams and phanerogams, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, ओके। तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ईचलर। कब दिया था बेटा, कब दिया था चैतन्य, कब दिया था बेटा ये? इट वॉज गिवन इन 1883, ओके। किसने दिया बेटा? राइट, अंजनी, किसने दिया बेटा? ईचलर, ओके। कौन से 2 ग्रुप्स हैं? साहिल बताएगा, साहिल बताएगा। 2 ग्रुप्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स, ठीक है, ओके, गुड। चलो आगे, हायर लेवल, प्लांट्स को हायर लेवल पे क्लासिफाई करना, ओके। उसके लिए क्या करेंगे, देखो, वेदर द फ्लावर्स आर प्रेजेंट, फ्रूट्स आर प्रेजेंट, सीड्स आर प्रेजेंट। हर एक प्लांट में फ्लावर थोड़ी होता है, ऐसा देखा है क्या आपने? हर एक प्लांट में फ्लावर हो, नहीं होता। कुछ प्लांट्स में नहीं होता है फ्लावर, कुछ प्लांट्स में सीड्स नहीं होते हैं, कुछ प्लांट्स में फ्रूट नहीं होता है। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर। 2 ग्रुप्स, ये मैंने पहले डिस्कस किया। फेनरोगैम्स के 2 ग्रुप्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। एक बार रीड करो बेटा, दिस आई हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ, दिस आई हैव डिस्कस्ड जस्ट नाउ। The phanerogams are divided into 2 groups. Gymnosperm, seed without fruit. Angiosperm produce seeds with fruit inside the fruit. Okay, basic difference है बेटा, ये basic difference. Next, angiosperms 2 classes, monocot and dicot. A single cotyledon inside the seed is monocot, double cotyledon in the seed is dicot. ठीक है, राइट, ये स्लाइड क्लियर है सबको, ओके। कैन आई सी योर थंब अप? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो पहला ग्रुप हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। अब ध्यान से देखना बेटा, बेसिक चीज समझ में आ गई आपको, बेसिक चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग द डिटेल स्ट्रक्चर, राइट। पहला, थैलोफाइटा। बेटा ब्रैकेट में क्या लिखा है जरा देखो, जरा छोटी हैंडराइटिंग है, क्रिप्टो हिडन, हिडन गैमोस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिनको हमने क्या नाम दिया बेटा? सेक्स ऑर्गन्स, ओके। द गैमेट्स, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन इनसाइड द बॉडी, हिडन इनसाइड द बॉडी, ओके। क्रिप्टोगैमोस, ओके। उसका पहला डिवीजन थैलोफाइटा,
थैलोफाइटा. फाइटा मीन्स प्लांट बॉडी, थैलो मीन्स थैलस. ओके, अब थैलस क्या होता है मैं आगे बताऊंगा. पहला पॉइंट देखो, these plants are aquatic. याद रखो बेटा, प्रिमिटिव प्लांट. अर्थ पे सबसे पहले प्लांट्स ये थे. मैं सबसे पहला ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. आई एम सेइंग पहले प्लांट्स जो डेवलप हुए अर्थ पे, दे वर थैलोफाइट्स. ओके, इसके लिए वो हमेशा कहां रहते हैं? पानी में. दे आर aquatic, they grow in water. Okay, so thallophyta, they grow in water, they are aquatic. अब देखो पानी में होंगे तो दो पॉसिबिलिटीज है ना. कौन सी दो? either they are in fresh water. थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, इंटरेस्टिंग है. फ्रेश वाटर बॉडीज कौन सी होती है? रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल एंड स्ट्रीम. रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल एंड स्ट्रीम, ये सब फ्रेश वाटर बॉडीज है. तो सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर कहां है? सी एंड ओशन, समुंदर और महासागर. सुना है बेटा आपने? सी एंड ओशन. ओके, सो सम algae are present in fresh water, some algae are present in marine water. ओके, आगे देखो बेटा, आगे देखो. द बॉडी ऑफ दीज प्लांट्स, थैलोफाइटा की बॉडी क्या लिखा है? पढ़ो. The specific parts like root, stem, leaf and flowers are मैंने नहीं सुना, वापस बोलो. They are absent. They are absent. ऐसी बॉडी को कहते हैं थैलस. लिखो बेटा, थैलस का मतलब क्या है? The body is not differentiated. तरन्नुम, वेरी गुड, वेरी गुड, आपने बराबर आंसर दिया बेटा. द प्लांट बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड थैलस. इज कॉल्ड थैलस. And in these plants, there is no root, no stem, no leaf, no flowers. ठीक है, right? पहला पॉइंट रिपीट करो. थैलोफाइटा प्लांट्स आर aquatic. कहां ग्रो होते हैं? पानी में. क्या पॉसिबिलिटीज हैं? either in the fresh water or in the marine water. ठीक है, right? river, pond, lake या sea, ocean. ठीक है, okay. Second, their body is thallus. That means there is no root, no stem, no flower, no leaf. The body is called thallus. ठीक है, चलो आगे. They are autotrophic. वापस वही मीनिंग. What is autotrophic? They can prepare their own food with the help of chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. चार चीजें होती है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए. 4 things are required. कौन सी 4 चीजें? फर्स्ट, sunlight. Second, chlorophyll pigment. Third, carbon dioxide. Fourth, water. Okay, so with the help of these things they can prepare their own food, so they are called autotrophs. They are called autotrophs. Okay, right? Example is algae. Example is algae. Spelling देखो बेटा, spelling देखो, algae, A-E, algae. ठीक है, so first group is algae. उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा. देखो, एल्गी की वैरायटी. ऐसा नहीं ना कि एक ग्रुप में एक ही टाइप होता है. देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एल्गी. सम आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल. क्या कहोगे? यूनिसेल्युलर, मेड अप ऑफ वन सेल. मेड अप ऑफ वन सेल. Many are multicellular.
Many algae are multicellular. अच्छा, अब थोड़ा सोचो, can you see the cell with your naked eye? Can you see single cell with your naked eye? नहीं, देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए. So जो algae यूनिसेल्युलर होगा वो माइक्रोस्कोपिक होगा. Yes or no? So variety, variation. Some are microscopic, some are macroscopic. Macro, नया word है बेटा, MACRO, macro. Macro means large size, large size. Some algae are unicellular, some algae are multicellular, some are microscopic, and few may be large size. पता है algae कितना बड़ा हो सकता है? 60 मीटर का भी एल्गी होता है. 60 मीटर, 60 मीटर्स. समुद्र के अंदर इतना बड़ा एल्गी होता है. ओके, सो सम आर वेरी स्मॉल. हैव यू सीन स्पाइरोगायरा अंडर माइक्रोस्कोप? कभी देखा है स्कूल के लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर स्पाइरोगायरा? नहीं, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है. बट सरगैसम बहुत बड़ा होता है. सो वैरायटी क्या है? Very tiny to very large, very tiny, very small to very large. ठीक है? Okay, this point is clear to you. Some algae are made up of one cell, some algae are made up of many cells, some algae are microscopic, some algae are macroscopic. Okay, next. Some of them are present in fresh water and some present in salty water. ये मैंने पहले बताया आपको. Okay, right? समुंदर के अंदर होते हैं, महासागर के अंदर होते हैं, नदी के अंदर होते हैं, पॉन्ड के अंदर भी हो सकते हैं. ओके, देखो जिनके घर में फिश टैंक होता है ना, देखो 2-4 दिन तक आप उसका पानी बदली नहीं करोगे तो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कुछ दिखता है. दैट्स एल्गी ग्रो हो जाता है ना. ओके, राइट. वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, वैलीज में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो स्लिपरी होता है एल्गी की वजह से. Okay, so they are green color. Some grow in fresh water, some grow in salty water. ठीक है? Okay, fresh water bodies याद रहेंगे, नहीं तो लिख लो. River, pond, lake, well, stream. और salty water में क्या लिखोगे? Salty water में sea and ocean. Sea and ocean. Next, they usually have soft and fiber-like body. देखो एल्गी को आप टच करोगे ना, उसकी बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है, एकदम सॉफ्ट. ओके, और फाइबर जैसी बॉडी. स्पाइरोगायरा को अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो लंबा थ्रेड दिखेगा. सो थ्रेड यानी फाइबर लाइक, थ्रेड यानी फाइबर लाइक. सो एल्गी या थैलोफाइट्स बोलो, एल्गी की बॉडी कैसी होती है? सॉफ्ट फाइबर लाइक बॉडी. ठीक है? राइट. वापस बोल रहा हूं, ऊपर से नीचे तक देखो. एल्गी इज aquatic, grow in water. The body is called thallus, without root, without stem, without leaf, without flowers. Okay, they are autotrophic. They do photosynthesis with the help of chlorophyll pigment. They are unicellular or multicellular. Some are microscopic, some are macroscopic, large size. Some grow in fresh water, some grow in salty water, saline water. Salty की जगह saline लिखो चलेगा. बॉडी कैसी है उनकी? सॉफ्ट फाइबर लाइक. एग्जाम्पल बेटा थोड़े कुछ वर्ड्स अलग हैं, ध्यान दो. स्पाइरोगैरा तो कॉमन है, आपको पता है. सेकंड एग्जाम्पल देखो, यूलोथ्रिक्स. ULO, यूलोथ्रिक्स. थर्ड कुछ लोग इसको बोलते हैं चारा. इट इज नॉट चारा, इट इज कारा. CHARA, कारा. नेक्स्ट इज उल्वा. नेक्स्ट इज सरगैसम. अब सरगैसम के बारे में बताऊं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज. सरगैसम 50-60 मीटर तक ग्रो होता है. सरगैसम कैन ग्रो अप टू
50-60 मीटर्स, मीटर्स बोल रहा हूं बेटा, मीटर्स। ओके, हाँ, सो दे आर वेरी लार्ज। ठीक है, मैं वापस प्रोनाउंसिएशन बोल रहा हूं बेटा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, उल्वा एंड सरगैस। ठीक है, ओके, राइट, ये सब किसके कैरेक्टर्स हैं? थैलोफाइटा, एग्जाम्पल एल्गी। ओके, आगे देखो बेटा, वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई। ओके, ब्रैकेट में कुछ लिखा है बेटा, पढ़ो। सुना है कभी? सुना है कभी? व्हाट इज यीस्ट? बेकरीज में यूज होता है, बेकर्स यीस्ट। घर में यूज कर सकते हैं फर्मेंटेशन के लिए। अल्कोहल इंडस्ट्री में अल्कोहल बनाने के लिए यीस्ट यूज होता है। यीस्ट इज व्हाट? फंगस। यीस्ट इज व्हाट? फंगस। ओके, कॉमन एग्जांपल, मशरूम तो पढ़ा है आपने, मशरूम खाए हो? मशरूम कभी खाया आपने मशरूम्स? इट्स अ फंगस, इट्स अ फंगस। फंगाई, वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई एंड मोल्ड। बेटा ब्रेड मोल्ड सुना है आपने? ब्रेड बारिश के सीजन में जल्दी खराब होती है, फंगस होता है उस पे, ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है ना ब्रेड के ऊपर। ओके, सो वेरियस टाइप्स ऑफ फंगाई एंड मोल्ड्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। विच ग्रुप? विच ग्रुप? क्या लिखा है लाल में? क्या लिखा है? थैलोफाइटा। क्या लिखा है बेटा? थैलोफाइटा। ओके, राइट। ऋषि रोहिड़ा, नेताजी स्कूल, रेज्ड हैंड। ओके, चैट बॉक्स में डालो बेटा, चैट बॉक्स में डालो, कुछ डाउट है तो, या आंसर देना है चैट बॉक्स में डालो, मैं देख लूंगा। ठीक है, ओके, सो एक एल्गी और दूसरा फंगस एंड मोल्ड्स आर एग्जांपल्स ऑफ विच ग्रुप? थैलोफाइटा। एग्जांपल्स ऑफ विच ग्रुप? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है बेटा? इट्स अ डिवीजन। ओके, किसका डिवीजन है? क्रिप्टोगैम्स का। ओके, राइट, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, वो टेबल याद करो जो मैंने अभी दिया आपको। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू क्रिप्टोज एंड फेनेरोस। ठीक है, तो क्रिप्टो का पहला डिवीजन थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा का एग्जांपल एल्गी। थैलोफाइटा का एग्जांपल एल्गी एंड फंगस। ठीक है, बट फंगस कम है, एल्गी ज्यादा। ठीक है, चलो आगे। हाँ, देखो क्या दिख रहा है बेटा? पहला वाला अभी बताया ना आपको, उल्वा। देखो उल्वा ऐसा दिखता है पानी के अंदर। सेकंड देखो, कारा, कारा। और थर्ड तो आप पहचानते हो बहुत इजीली, स्पाइरोगाइरा। इतना बड़ा दिखाया है, एक्चुअली छोटा होता है, माइक्रोस्कोप में देखने जैसा होता है। ओके, उल्वा, कारा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये एल्गी के 3 टाइप्स हैं, एग्जांपल्स है। सेकंड ग्रुप, सेकंड ग्रुप क्या लिखा है? क्या लिखा है? ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, second division of cryptogams, second division of cryptogams. ओके, वापस कॉमन कैरेक्टर याद रखो, द सेक्स ऑर्गन्स आर हिडन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिखते नहीं है, वो हिडन होते हैं। राइट, राइट। इसका पहला कैरेक्टर देखो बेटा, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा देखो, दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? व्हाई? एनिमल किंगडम का एम्फीबियन फ्रॉग होता है, प्लांट किंगडम का एम्फीबियन ब्रायोफाइटा है। ओके, क्यों? रीजन बताया, बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड, जमीन पे ग्रो होते हैं, बट बहुत गीली जमीन, मॉइस्ट लैंड, मॉइस्ट लैंड, बिना वाटर के उनका रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होगा। विदाउट वाटर they cannot reproduce, so they need water. So they can grow on land, but for reproduction they need water. So they are amphibians of plant kingdom. They are amphibians of plant kingdom. ठीक है, चल आगे। कहां ग्रो होते हैं? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मॉइस्ट सॉइल,
बट दे नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। सॉइल पे ग्रो होते हैं। बेटा एग्जाम्पल बताऊं आपको, कॉमन कौन सी सीजन चल रही है अभी? बारिश की सीजन। बारिश के सीजन में घर की जो बाहर की दीवारें होती हैं वो गीली हो जाती है ना, राइट? उन गीली दीवारों पे कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रो हो जाता है, राइट? दैट इज ब्रायोफाइट, दैट इज ब्रायोफाइट। ओके, दे ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल। घर की दीवारें बाहर की अगर प्लास्टर नहीं है, ब्रिक्स हैं, तो बहुत ज्यादा ग्रो होंगी, क्योंकि ब्रिक इज सॉइल। ओके, राइट? सो दे ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल but they need water for reproduction. Soil लिखा है means they are terrestrial, they are land plants, but they need lot of water to complete their reproduction. Without water they cannot reproduce. क्यों ऐसा? रीजन बताऊं मैं, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हुआ है, सुन लो। इनका जो मेल गैमेट होता है ना, मेल गैमेट जिनको हम कहते हैं स्पर्म, ओके, वो पानी में स्विम करता है और फीमेल गैमेट के पास जाके फर्टिलाइजेशन करता है। Okay, their male gamete is motile. Motile means swim करता है, उसके पास flagella होते हैं. They swim in water, go to female gamete and fertilize. So for reproduction they need water. Swimming कहाँ करेगा? हवा में करेगा क्या? पानी में करेगा ना? So they need water for reproduction. ठीक है? Okay, चल next. The body is थैलॉइड। बेटा थैलॉइड का मतलब अभी लिखा ना आपने, थैलस। द बॉडी इज विदाउट रूट, विदाउट स्टेम, विदाउट लीफ। द बॉडी इज विदाउट रूट, विदाउट स्टेम, विदाउट लीफ। ऐसी बॉडी को क्या कहोगे? थैलॉइड बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? थैलस। द बॉडी इज थैलॉइड। मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर मेड अप ऑफ मेनी सेल। यहां पे यूनिसेल्युलर नहीं है, याद रखना बेटा। यूनिसेल्युलर फॉर्म्स आर एब्सेंट। यूनिसेल्युलर सिर्फ एल्गी में होता है। ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स एंड दे आर आल्सो ऑटोट्रॉफिक। दे कैन डू फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। ओके, सो इनको आप अगर 3 अलग अलग पॉइंट बनाओगे तो एग्जाम में आंसर बड़ा दिखेगा। चालाकी, स्मार्ट बनो, स्मार्ट। बहुत सारे पॉइंट सिखाने ना। द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज थैलॉइड। द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर। द ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक। दे आर फोटोसिंथेटिक। दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। दे कैन डू देयर फूड। ओके, ऐसे बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं अगर टाइम है तो। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो ऐसे लिखेंगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है? ओके, कुछ ट्रिक्स होते हैं बेटा जो एग्जाम में हमको काम आते हैं। चल, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अभी आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बोला गैमेट्स। बेटा 2 टाइप के रिप्रोडक्शन है, 2 टाइप के, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल बाय स्पोर्स, सेक्सुअल बाय गैमेट्स। So reproduction by spores. They reproduce with the help of what is spore? छोटा सा यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, ओके, जो सॉइल पे गिरता है और नया प्लांट निकलता है, नया ब्रायोफाइट निकलता है। ओके, सो दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, राइट? आगे, the body of bryophyta is flat, ribbon like, पतला रिबन जैसा होता, एकदम फ्लैट, ऐसे चपटा चपटा, फ्लैट। ओके, रिबन लाइक, रिबन, लॉन्ग, लंबा। नो रूट्स, नो स्टेम, नो लीफ। लिखा है बेटा, विदाउट ट्रू रूट्स, विदाउट स्टेम, विदाउट लीव्स। ओके, तो अगर कोई पूछे ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसी होती है? फ्लैट, रिबन लाइक, लॉन्ग, विदाउट ट्रू रूट्स, विदाउट ट्रू स्टेम एंड विदाउट ट्रू लीव्स। ओके, ब्रायोफाइटा आपको कहां मिलेंगे बेटा?
where do you find bryophytes? In the moist land, moist soil. Why they are called amphibians of plant kingdom? Because they need water to complete their reproduction. Okay, and asexual reproduction is with the help of spore. ठीक है, easy, right? Thumbs up or down? Any doubts? Put it in chat box. Yes, good. Okay, some bryophytes, देखो कहानी में ट्विस्ट. पहले क्या बोला मैंने? नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ. ओके, बट कुछ ब्रायोफाइट्स में बेटा यहां पे भी तो लोअर और हायर आता है ना. सम ब्रायोफाइट्स आर लोअर, सम आर हायर. ओके, तो सम लोअर फॉर्म्स नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, बट थोड़े हायर एवोल्यूशन में, थोड़े हायर, उनके पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, root like structure, leaf like structure. So some higher forms with stem like structure, with root like structure and leaf like structure. और जो root like structure होता है उसके लिए एक word लिखा है, पढ़ो जरा. क्या बोला? Rhizoids. क्या बोला बेटा? Rhizoids. Okay, stem like, root like rhizoids, leaf like parts. सब में नहीं होता है, some bryophytes. Okay, आगे. The specific tissue for conduction of food and water is absent. Okay, the tissue for conduction of food. तो आप सोचेंगे कि फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा जब वो टिश्यू है ही नहीं. बेटा स्पेशल टिश्यू नहीं है. Okay, from one cell to another, directly water is going. Water is passed from one cell to another directly. Food is passed from one cell to another cell directly without a special tissue. Okay, right? उस special tissue का नाम क्या है? Vascular tissue. क्या नाम है बेटा? Vascular tissue is absent. Vascular tissue is absent. ठीक है? Right. Example. कैसा प्रोनाउंस करोगे? Funaria. Okay, it's not funaria, it's funaria. Commonly कहते हैं moss. जो मैंने बताया ना, बाहर की गीली दीवारों पे ग्रो होता है, that is moss. Funaria. दूसरा marcantia. बोलेंगे सब लोग. Funaria, marcantia. Next is anthoceros. Okay, right? Fourth is Rixia. See, English is funny language. Double C है. एक को हम बोलते हैं क, एक को बोलते हैं स. रिक्सिया. ओके, पता है कुछ लोग इसे बोलते हैं रिक्शिया. It's not rickshaw, it's rixia. Okay, rixia. Funaria, marcantia, anthoceros, rixia. ठीक है, right? Algae के examples बताओ जो पहले बताया मैंने. Algae के examples: Ulva, Sargassum, Spirogyra, Chara, Eulothrix. ठीक है, right? और ब्रायोफाइटा के एग्जांपल्स फ्यूनारिया, मर्केंशिया, एंथोसेरोस, रिक्सिया. ठीक है, राइट? गंगवानी महक चैट बॉक्स में डालो बेटा. कुछ डाउट्स हैं क्या? चैट बॉक्स में डालो. कुछ डाउट्स है क्या? चैट बॉक्स इज ओपन बेटा. हाँ चलो आगे. हाँ देखो ये फोटोज है बेटा. किसके फोटोज हैं? ब्रायोफाइटा. पहला देखो फ्यूनारिया, जिसको हम कहते हैं मॉस. ऐसा कुछ देखा है आपने दीवार पे? वो येलो कलर का कैप्सूल दिख रहा है,
येलो कलर का कैप्सूल दिख रहा है, कैप्सूल। ओके, हम लोग क्या करते थे बेटा बचपन में, उसको तोड़ के ऐसे लड़ाते थे, किसका कैप्सूल जल्दी टूटता है, वो हार गया। ऐसा कुछ किया है आपने? नहीं किया? नहीं भाई, व्हाट्सएप से फुर्सत मिले तो ना, है ना साहिल, है ना? तुम क्या बोल रहे हो चैतन्य? सेकंड एग्जाम्पल क्या है रिद्धि? सेकंड एग्जाम्पल पढ़ बेटा। मार्केंशिया, मार्केंशिया। थर्ड एग्जाम्पल एंथोसेरोस। देखो अलग अलग शेप्स है ना बेटा, दीज आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ ब्रायोफाइटा। पीयूष गुरनानी बेटा चैट बॉक्स में डालो, पीयूष गुरनानी चैट बॉक्स में डालो बेटा, कुछ भी डाउट है तो। हाँ, आई विल ओपन चैट बॉक्स, ठीक है, मैं देखता हूँ चैट बॉक्स में क्या लिखा है आपने। सानिया शेख नहीं देखा है बोल रही है, तरन्नुम ओके ओके, चैट बॉक्स इज ओपन, मैं देख रहा हूं बेटा, यस। चलो ये 3 एग्जाम्पल किसके हैं? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप टेरिडो, डिवीजन 3। किसका डिवीजन 3 है ये बेटा? क्रिप्टोगैम्स का डिवीजन 3। टेरिडो, स्पेलिंग देखो, पी साइलेंट, T is silent. Pteridophyta. Pteridophyta. This word is taken from Greek word pteron. Pteron यानी feather. Feather. The leaves are like feather of a bird. Okay, right. किसी बड़े पक्षी के बड़े बड़े feathers होते हैं, इनके leaves वैसे दिखते हैं. Right? I'll show you the diagram also. I'll show you the diagram also. सर वी हैव टू राइट इट। बेटा आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपके नोट्स बन जाएंगे साथ साथ में। ओके, इफ यू राइट, तरुण में पूछा है सर डू वी हैव टू राइट दिस? इफ यू राइट योर नोट्स विल बी रेडी, देन यू डोंट हैव टू सी एनीथिंग एल्स। ठीक है, फिर एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लोगे, सब दिमाग में आ जाएगा। वंस यू राइट यू अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे। ठीक है, चलो आगे देखो। यस, एवोल्यूशन में पहली बार, व्हाट इज एवोल्यूशन? चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स। एवोल्यूशन में थर्ड प्लांट है टेरिडोफाइटा। अब यहां क्या हुआ बेटा? कोई नई चीज हो गई यहां पे, कोई नई चीज यहां पे हो गई। जागृति, यस बेटा यू आर राइट। कोई नई चीज, क्या नई चीज हो गई? पहली बार बॉडी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ डेवलप हो गया। So these are the plants in which roots are present, stem is present, leaves are present. ठीक है, typical character of land plants. ठीक है, चलो आगे। They also have, देखो evolution में एक और नई चीज हो गई। सेकंड चीज क्या हो गई evolution में? इनके पास well developed tissue आ गया जो कंडक्शन करेगा। कोई बता सकता है कंडक्शन के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए? वाटर और फूड कंडक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए कौन सा टिश्यू चाहिए? फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डैश इज रिक्वायर्ड। सुना है आपने जाइलम, XYLEM, जाइलम सुना है कभी? साहिल नहीं सुना है बेटा, तो लिखना चाहिए ना बेटा। वाटर कंडक्ट करने के लिए जाइलम, XYLEM, और फूड कंडक्ट करने के लिए फ्लोएम, फ्लोएम, PHLOEM. For conduction of water, xylem. For conduction of food, phloem, PHLOEM. So they have separate, well-developed tissue for transport of food and water. ठीक है, right? Next point. Flowers are present. Fruit is present? No, no. In these plants, the fruit and flower is absent. So they do not produce fruits, they do not produce flowers. Okay, right? No fruit, no flower. They reproduce by a sexual method with the help of spores.
They reproduce by asexual method with the help of spores. अब स्पोर्स कहां प्रेजेंट होंगे? पहले सुन लो बेटा, सुन लो। स्पोर्स कहां प्रेजेंट? देखो फॉर एग्जांपल ये लीफ है, क्या है ये? लीफ। ओके, ये ऊपर वाला साइड, ये नीचे वाला साइड, दिस इज लीफ। ओके, दिस इज अपर सरफेस, दिस इज लोअर सरफेस। ये ऐसा लीफ रहता है ना बेटा, राइट? ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, मेरे हाथ की तरफ देखो। दिस इज अपर सरफेस, दिस इज लोअर सरफेस। तो इन प्लांट्स में लोअर सरफेस में, लीफ के लोअर सरफेस में छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पोर्स होते हैं। द स्पोर्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, लीफ के पीछे के सरफेस में। मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा इसका, उसमें आप देखना। लीफ के पीछे के सरफेस में छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पोर्स होते हैं। तो पीछे का सरफेस को कहते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पढ़ो बेटा, स्पोर्स आर produced at the posterior surface of the leaves, on the lower surface of the leaf. Upper surface को कहते हैं anterior, lower surface को कहते हैं posterior. The spores are produced on the posterior surface of leaves. Next, they reproduce sexually, sexual reproduction present with the help of, अब देखो sexual reproduction के लिए बड़ा gametes होते हैं, male gamete and female gamete. उनके यूनियन को कहते हैं fertilization, उसके प्रोडक्ट को कहते हैं zygote. ये तो आपको पता है. The fusion of male and female gamete will produce zygote. So they reproduce by sexual method with the help of zygote formation. With the help of zygote formation. Okay, they reproduce, reproduction, giving birth to the young one. They reproduce with the help of zygote. Next, examples. पहले read करो, फिर मैं pronunciation बताऊं। पहले एक बार read कर लो, देखो आपको pronunciation कैसा आता है। First example is nephrolepis. Nephrolepis. Bolo. The first example of Pteridophyta, nephrolepis. Second, Marsilia. Marsilia. Third, Pteris. Pteris. P silent है बेटा. Pteris. Next is Adiantum. Adiantum. Next is Equisetum. Equisetum. Selaginella. Selaginella. Lycopodium. Lycopodium. ठीक है, फिर से सुनो। नेफ्रोलेपिस, मेरे साथ साथ बोलो। नेफ्रोलेपिस, Marsilia, Pteris, Adiantum, Equisetum, Selaginella, Lycopodium, etc. ठीक है, राइट राइट। मुझे एल्गी के एग्जाम्पल बताओ, एल्गी के एग्जाम्पल बताओ। नोटबुक मत देखो, नोटबुक मत देखो। स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगैसम, कारा। ठीक है, ओके। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल क्या थे? ब्रायोफाइटा, फ्यूनारिया, मार्केंशिया, एंथोसेरोस, रिक्सिया। राइट, रिद्धि समझ रही हो बेटा? रिद्धि समझ में आ रहा है बेटा? थम्स अप करो समझ में आ रहा है तो। Yes, very good, very good. Okay, ferns के example, Pteridophyta को commonly हम कहते हैं ferns. Example, Nephrolepis, Marsilia, Pteris, Adiantum, Equisetum,
सिलैजिनेला, लाइकोपोडियम। ठीक है, ओके, राइट। थोड़े फोटोज देख लो बेटा, देखो फर्स्ट वाला फोटो है सिलैजिनेला, सिलैजिनेला। ओके, मैंने क्या बोला, उनके लीफ के पोस्टीरियर साइड में ब्राउन कलर के स्पॉट दिख रहे हैं, क्या है ये सब? दीज आर स्पोर्स, स्पोर्स के ग्रुप्स हैं। देखो एक बड़ा सा ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, उसमें बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स। देखो ना ऊपर वाला लीफ देखो कितने सारे हैं स्पोर्स, दे रिप्रोड्यूस विद हेल्प ऑफ स्पोर्स। ठीक है, फर्स्ट इज सिलैजिनेला, सेकंड इज नेफ्रोलेपिस, नीचे लिखा है लाइकोपोडियम। क्या लिखा है? लाइकोपोडियम, राइट। हाँ, ये सब टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा? टेरिडोफाइटा। कॉमनली क्या कहोगे? फर्न्स, राइट। कहां ग्रो होते हैं? मॉइस्ट कंडीशन में। कहां ग्रो होते हैं? मॉइस्ट कंडीशन। ओके, माउंटेन्स के ऊपर जहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती। आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए इनको, बहुत ज्यादा सनलाइट में वो मर जाएंगे। ओके, थोड़ा शेड लविंग प्लांट्स है बेटा, दे ग्रो इन शेड, शेड लविंग प्लांट्स। ठीक है, राइट। चलो आगे, पहला ग्रुप क्या था? क्रिप्टोगैम्स। एक बार हम फ्लैशबैक में जाएंगे, पुरानी यादें ताजा करेंगे। चलो रीड दिस फटाफट, क्विक क्विक। थैलोफाइट्स, दे ग्रो इन एक्वाटिक, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, पानी में रहने वाले। The specific parts like root, stem, leaf, flower, axon, they are autotrophs. All plants are autotrophs except few. Some are unicellular, multicellular, microscopic, large size. जिसने नहीं लिखा वो लिख लेगा फटाफट। Some grow in fresh water, some grow in marine water. Body is soft and fiber-like. Thallophyta. Example algae. Examples लिख लो, अलग अलग कॉलम्स बनाने चाहिए एग्जाम्पल के लिए। स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स, कारा, उल्वा, सरगैसम। Some fungus and molds are also included in this group. ठीक है, चले आगे बेटा, read this. Bryophytes are amphibians of plant kingdom. They grow in moist soil, but they need water for reproduction. The body is called thallus. The body is multicellular. The body is autotrophic. They reproduce by spores. Body is flat, ribbon-like, without root, stem, leaf. But some higher forms shows stem-like, root-like, and leaf-like structure. For conduction on food and water, tissue is absent. इसका मतलब xylem and phloem absent. Xylem and phloem absent. Funaria, Markensia, Anthoceros, and Rixia. Okay. Third group, क्रिप्टोगैम्स का। रीड करो एक बार, रीड करो। Well developed root, stem, leaf, separate conducting tissue, produce flowers, do not produce flowers and fruits. Asexual reproduction by spores, sexual reproduction by zygote. Example, Nephrolepis, Marsilia, Pteris, Adiantum, Equisetum, Selaginella, Lycopodium. ठीक है, राइट। ओके, थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, मुझे जरा आंसर्स बताना इसके। इसको तो हम बाद में लेंगे बेटा, सेकंड लेक्चर में। हाँ, ओके ओके, एक मिनट। हाँ बोलो, क्विक, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में सबका आंसर आना चाहिए। द प्लांट्स व्हिच आर कॉल्ड एम्फीबियंस। बेटा हाथ ऊपर मत करो, डोंट रेज योर हैंड,
just put it in chat box. I can read it. The plants which are called, yes, you are right, beta, correct. Rishi Rohira, you are 100% correct, beta. The amphibians of plant kingdom. बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Yes, Tarannum, you are right, beta. Jagriti, you are right, beta. Okay, Sahil Tewani. Sahil Tewani, unmute करो बेटा. Unmute करो. साहिल तिवानी आंसर तुम बोलोगे बेटा. कैन यू अनम्यूट? साहिल अनम्यूट हुआ बेटा, बोलो. यस सर. हाँ बोलो. डैश प्लांट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस. बेटा जमीन पे भी रहते हैं, पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए. 3 ग्रुप्स पढ़े हमने, उसमें से पहला वाला तो पूरा पानी के अंदर ही डूबा हुआ है. सेकंड वाला जमीन पे आ गया, बट रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए. ओके, राइट राइट. ओके, चैतन्य तनवानी. चैतन्य तनवानी बोलो. सर कैन आई टेल? ऋषि रोहिड़ा. चैतन्य बोलो. बायोफाइटर. हाँ, बायोफाइटर. ऑप्शन ए बी सी डी. बी. बी, वेरी गुड. इट इज ब्रायोफाइट्स. ओके, ऑप्शन बी. यस. ओके ऋषि, नेक्स्ट आंसर तुम दोगे बेटा सेकंड क्वेश्चन का. ऋषि रोहिड़ा, नेक्स्ट आंसर तुम दोगे. मैं तुमको अनम्यूट कर रहा हूं. Soft and fiber-like body present in dash plants. Soft and fiber-like body. Rishi, I can't hear you. थोड़ा इको साउंड आ रहा है बेटा. अच्छा ठीक है, चैट बॉक्स में डालो. चैट बॉक्स में डालो. तरन्नुम, तरन्नुम अनम्यूट कर रहा हूं बेटा. बताओ. Soft and fiber-like body present in dash plants. बोलो तरन्नुम, बोलो. थैलोफाइटा. Very good, very good. Option A. sorry. Option A, थैलोफाइटा. एल्गी की बॉडी कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती है और रिबन जैसी, फाइबर जैसी. नॉट रिबन, फाइबर लाइक. ठीक है, चलो थर्ड हम देखेंगे बेटा. थर्ड रीड. अब किसको अनम्यूट करें बेटा? हाँ ऋषि, तुम अभी बता पा रहे हो बेटा? ऑडियो बराबर है अभी तुम्हारा? चलो ऋषि रोहिड़ा. सर ए. यस बेटा. ए. इट्स ऑप्शन ए. ऑप्शन ए फिर से सोचो. टेरिडोफाइटा है बेटा, टेरिडोफाइटा है. यस, चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर आया बेटा. 4 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ ऊपर किया है. ऋषि वापस देखो बेटा. इट इज नेफ्रोलेपिस, टेरिडोफाइटा, नेफ्रोलेपिस. बाकी तीनों क्या है? चारों क्या है बेटा? बी और डी मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, वो आगे के ग्रुप्स है. ठीक है, सरगैसम इज एल्गी, नेफ्रोलेपिस इज टेरिडोफाइटा. ठीक है, ओके. चलो एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चंस और हैं. नेफ्रोलेफाइटा. करेक्ट. जागृति. नेफ्रोलेपिस बेटा. नेफ्रोलेपिस. यस. This is not working. Next question. Okay. यूलोथ्रिक्स. अरे ये तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है. यूलोथ्रिक्स. कौन से ग्रुप्स पढ़े हमने आज? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा. थैलोफाइटा में हमने क्या पढ़ा? एल्गी. तो ऊपर वाले 2 तो हमने पढ़े ही नहीं ना, तो वो तो जवाब आएगा ही नहीं. ओके, क्वेश्चन तो बेटा आज के टॉपिक से डालूंगा ना. हाँ, तो बाकी के बचे 2. राइट. करेक्ट आंसर Tarannum, very good. That is the right answer. Rishi, right answer. Socho. Ulothrix,
मैं वापस सबके एग्जाम्पल्स बता दूं जिसने नहीं लिखा नोटबुक में। एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं स्पाइरोगाइरा, उल्वा, यूलोथ्रिक्स, कारा एंड सरगैसम। ठीक है, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स क्या लिखे आपने? मार्केंशिया, एंथोसेरोस, रिक्सिया, राइट, एंड फ्यूनेरिया। और टेरिडोफाइटा में क्या था? नेफ्रोलिपिस, टेरिस, ये सब, राइट। चलो, करेक्ट आंसर यस। कुछ चैट बॉक्स में भी है आंसर्स, मैं देख लूं जरा। इट इज एल्गी, यस। फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, algae, right? Next. Read this, fifth question. Find the odd one out from the following. बेटा इनमें से odd one ढूंढो, examples के basis पे है। Examples note नहीं किया ना आपने, यही तो गलती की आपने। What did I say? If you write, it will be registered in your mind. Odd one out is, इसमें 3 ब्रायोफाइट्स हैं और एक टेरिडोफाइट है। 3 ब्रायोफाइट्स हैं और एक टेरिडोफाइट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिलाजिनेला। ऑप्शन सी, सिलाजिनेला। ओके, ऑप्शन सी, सिलाजिनेला, बिकॉज रिक्सिया, मार्केंशिया आर ब्रायोफाइट्स, दे आर ब्रायोफाइट्स। यस बेटा, किसी ने हिंदी में टाइप किया है, जागृति, वेरी गुड। सिलाजिनेला, वेरी गुड। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इन टेरिडोफाइट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय डैश। साहिल तेवानी को अनम्यूट करिए। साहिल बोलो बेटा। Yes, sir. हाँ, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल इन टेरिडोफाइट्स। Sir, ऑप्शंस स्पोर, जाइगोट, गैमेट्स एंड स्टेम। असेक्सुअल बाय, sir, अभी क्या बताया? लीफ के पीछे के साइड में ब्राउन 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 क्या होता है? sir, option A. ऑप्शन ए, वेरी गुड। क्या है ऑप्शन ए? पढ़ो। स्पोर्स। कैसा प्रोनाउंस करोगे? स्पोर्स। Sponge. स्पोर्स। ओके, साहिल ने करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन ए। ठीक है, राइट। चलो, ओके, राइट। तो ये बेटा क्या था? दिस वाज लिटिल इवैल्यूएशन फ्रॉम योर 3 प्लांट्स। ओके, बाकी के 2 प्लांट्स हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।